Namaskar. Myself, Dr. Ismail Kumar Mishram, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture of research methodology. We will today discuss about this topic of most popular ways to study Indian society. Most popular ways to study Indian society. In sociological studies, there are two popular ways which are developed in Indian society and its study world: the textual perspective and the field view. They are the two ways and the most popular ways for study to our Indian society for the various kinds of social researches. The more than 80% or you can say approximately 90% researches which are based on social policies and other social issues are performing by the textual view or field view. So, how we study in both views, we will discuss on it on our this topic. First of all, we will discuss of our society, which is our main field area for our particular social research. So, we will discuss on the textual view, and we will discuss on field view. How we perform the textual social studies and the social studies researches which are based on field work, we will discuss on it. First of all, first try to understand the Indian society, which is our main area to perform our particular social research. Whichsoever is your topic is, you know that is in the field of Indian society. So, in manner to understand the textual view and the field view, to understand its researches about Indian society, first you have to discuss and understand few main characteristics very briefly of Indian society. So, first of all, we will discuss on characteristics of Indian society. Later on, in our next lecture, we will discuss on textual view and field view. Then you will perfectly able to understand how both of the perspectives are working for Indian society studies. So, in this title, we have few subtitles which we discussed the main characteristics. First one is versatile cultural heritage. Versatile cultural heritage. The second is caste system. Third is importance of tradition and rituals. Importance of tradition and rituals. The fourth one is importance of religion. Next is importance of social institution, marriage and family. In this characteristics, we will make focus on marriage and family. The importance of the social institution like marriage and family in our Indian society. So, in today's lecture, we will discuss and focus on these points, try to understand. And in our next lectures, we will later discuss on the rest part, which is important. So, हिंदी में यदि हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीके हैं भारतीय समाज का अध्ययन करने के, क्योंकि जब भी आप अध्ययन करेंगे तो भारतीय समाज से संबंधित किसी अंग का ही करेंगे।
द यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि किस प्रकार से जो है कौन कौन से जो तरीके रहे हैं, प्रचलित विधियां रही हैं, जो दृष्टिकोण रहे हैं, जो भारतीय समाज के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग किए गए हैं अभी तक के समाजशास्त्रीय अध्ययनों में या सामाजिक शोध में। ओके, तो इसके लिए हमने देखा कि जो दो वे जो हैं, टेक्सचुअल वे, इसी को इंडोलॉजिकल वे भी कहते हैं। इंडोलॉजिकल भारतीय विद्याशास्त्रीय उपागम, हिंदी में इसे कहते हैं पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य या भारतीय विद्याशास्त्रीय उपागम। और एक जो दूसरा पॉपुलर वे है जिसको ज्यादा रिलायबल माना जाता है आज की डेट में, इन प्रेजेंट सोशल कंटेंट, वी रिलाई ऑन फील्ड स्टडीज। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है, जो स्कॉलर होता है, वो स्वयं जाता है उस पर्टिकुलर सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करने जिसे वो अपने रिसर्च टॉपिक के रूप में चयनित किया हुआ होता है। वो खुद जाकर के अध्ययन करेगा। और जो टेक्सचुअल वे और इंडोलॉजिकल वे होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो उपलब्ध प्राचीन धर्मग्रंथ हैं या पांडुलिपियां हैं या अन्य किसी प्रकार के हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, हम उनकी सहायता से समाज को समझने का प्रयास करते हैं। और आपने अपने यूजीज में और मास्टर्स में इन दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों के बारे में विस्तार से पढ़ा है और इनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ा है। और आपको पता है गोविंद सदाशिव घुरिये जी, डॉक्टर जी.एस. घुरिये जो हैं, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, वो प्रबल समर्थक रहे हैं टेक्सचुअल या इंडोलॉजिकल व्यूज के। उनके अनुसार ऐसा है कि अगर आप डायरेक्ट समझना चाहेंगे भारतीय समाज को तो आपको समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट आप फील्ड वर्क में उतर जाएंगे तो आपको जो इंडियन सोसाइटी है उसे समझने में बहुत वक्त लग जाएगा, या आप गलत भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि बैकग्राउंड क्या है। द बैकग्राउंड इज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स कल्चरल हेरिटेज which are in continuous reforming and adding new kinds of traditions, removing the old traditions and rituals, many kinds of social movements, many kinds of political movements, and foreigners and their culture, many kinds of things, the economical revolution, the industrial revolution, many kinds of things content Indian society in its boom. So how we will study of these kinds of things? So the textual view is evidence for the every change which occurs in our Indian society by passing the time. We can rely on this textual evidence to study our Indian society. How the way it become as it is now. To study that, we have to rely on textual view. Okay, then few modern sociologists say that only textual view is not going to help you, because modern conditions are actually different from the ancient Indian social conditions. So we have to understand the field studies for study and researches about Indian society. We have to rely only on field studies. You have to go to the society, you have to go to the in
incident places which where the many kinds of social issues happens, and then study with direct observation and the scientific study method. So there are both kinds of scholars and experts. They are advising both the way. But first of all, we will study about the main characteristics of our society, which is your vast field area. In this vast field area, you will pick up some unit to study for your research work. And if you understand better your society, then obviously your research work will grow simultaneously better. Okay. So today we will discuss on this main characteristics feature. First of all, we will discuss about versatile cultural heritage. Our versatile cultural heritage, जो हमारा वैविध्य पूर्वक जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, विरासत रही है, इस विरासत को हम देखें तो इसमें विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को मानने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग, एक ही धर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पंथों को, वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल सेक्ट्स, various kinds of religious sects are there in our Indian society, and there are different cultural heritage, there are different kinds of dresses and their festivals and their traditions and their languages, their own literature. So much versatility contains our Indian society itself. तो इन सब का अध्ययन करना और इन सब के बारे में जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का अध्ययन करना चाह रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी रिलीजियस सेक्ट का अध्ययन करना चाह रहे हैं, या ट्राइबल सेक्ट का अध्ययन करना चाह रहे हैं, आप जिस भी समाज की इकाई को अपने अध्ययन के रूप में चुनेंगे, तो पहले आपको उनका ज्ञान तो प्रॉपर और पर्टिकुलर उसी इकाई का ज्ञान हो ऐसी बात नहीं है, आपको भारतीय समाज का समग्र ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप एक बेहतर सामाजिक अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि जितना बेहतर मेरे अपने समाज के बारे में ज्ञान होगा, क्योंकि वहीं से मैं अपना टॉपिक लूँगा, वहीं से आप सभी अपना टॉपिक लेंगे अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए। तो जितना बेहतर आपके समाज के बारे में ज्ञान होगा, उतना ही बेहतर आपका रिसर्च वर्क होगा, आपका शोध अध्ययन होगा। तो ये समझना बहुत आवश्यक होता है कि कितना वैविध्यपूर्वक हमारा सांस्कृतिक विरासत रही है, जिसमें जो विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न मान्यताओं के लोग हैं, वो किस प्रकार से समरसता पूर्वक रह रहे हैं। कभी कभी इनर कॉन्फ्लिक्ट जैसी आंतरिक संघर्ष जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होती है, स्वाभाविक है। जितना ज़्यादा वैविध्य होगा उतना ज़्यादा ही जो है संघर्ष की संभावना भी होगी, होता है ऐसा, क्योंकि अलग अलग प्रकार की विचारधारा के जब लोग रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ों में वो एक मत हो या उनके बीच सब कुछ जो है बहुत स्मूथ और आराम से सब कुछ चलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी संघर्ष भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं। हाँ, ये आवश्यक ये है कि ये संघर्ष और मतभेद जो हैं वो सृजनात्मक हों, समाज के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक ना हो, हिंसक ना हो, क्योंकि कम्युनल वायलेंस का रूप ना ले और रीजनलिज्म का, रिलीजियस सेक्टिज्म का इस प्रकार का रूप ना ले, वरना संप्रदायवाद, जातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद से तो हम जान ही रहे हैं हम किस प्रकार से पीड़ित हैं, इन सब समस्याओं से जूझ रहा है हमारा समाज। और केवल आम लोग नहीं, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े समाज के कर्णधार जिन्हें हम कहते हैं वाइट कॉलर्स,
peoples, they are also suffering from this kinds of tribalism. तो किस प्रकार से हम एज ए सोशल रिसर्चर अपने समाज का तटस्थ अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है अपने ही समाज का तटस्थ अध्ययन करना। इसलिए बहुत से जो विद्वान रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि you can be biased if you are studying your own society in its parts. So you have to study foreign culture or foreign societies. That will be more scientific to you, because bias will be not there. Your personal likes and dislikes will not enter there. Your own prejudices will not become obstacles in your studies because of that. तो जब मैं अपने समाज का अध्ययन करता हूँ तो मेरे अपनी पसंद नापसंद, मेरे अपने पूर्वाग्रह बीच में आ सकते हैं, क्योंकि मैं उसी समाज का हिस्सा हूँ। परंतु जब मैं दूसरे के समाज का अध्ययन करता हूँ तो तब मैं बिल्कुल नया हूँ, मैं बहुत नई चीज़ का अध्ययन कर रहा हूँ। उनके तौर तरीके, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनके सामाजिक मूल्यों में और मानदंडों में भी अंतर हो सकता है। ये सब चीज़ें नहीं है तो मैं ऑब्जेक्टिव हो सकता हूँ, तब वस्तुनिष्ठता आ सकती है, तब मैं पक्षपात रहित अध्ययन ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा। तो बहुत से समाजशास्त्री ये सलाह देते हैं कि आप दूसरे समाजों का या दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे, बजाय आप अपने खुद के समाज का या सांस्कृतिक इकाई का अध्ययन करें। और मेरे ख्याल से पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा संस्कृति के बारे में, वो आपको क्लियर होगा ही कि संस्कृति क्या होती है। मैंने आपको समझाया था कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है, सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने देखा था बहुत सरल सी परिभाषा में, फिर से आपको मेमोराइज करना चाहूँगा, स्मरण दिलाना चाहूँगा ताकि क्लियर रहे आपके माइंड में। जब हम कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या है वास्तव में, ये क्या है। हमने देखा था कि संस्कृति जो है वो मानसिक पक्ष है हमारे समाज का। इसमें भाषा सम्मिलित है, इसमें हमारी सोच सम्मिलित है, विचारधाराएं सम्मिलित हैं, our ideologies, our thinking, our ideas, our knowledge, all inclusive, the mental part of society is culture. आपके समझने के लिए है ऐसा। And what is civilization? Civilization is a physical part of society. The book, the equipments, the blackboard, the clothes, the architecture, these are physical things which are interpreted and developed by culture itself is civilization. So civilization is a physical part of society and the culture is the mental part of society. It is a clear-cut distinction. Remember it. तो संस्कृति जो है मानसिक पक्ष है समाज का, और सभ्यता जो है वो समाज का भौतिक पक्ष है। ये आपको हमेशा स्मरण रखना है। ओके, the next is caste system. The origin of the caste system is a hypothesis of and ideology of Varna system. So the caste system emerged through the Varna system. And you know there are 4 Varnas: the Brahmins, the Kshatriya, the Vaishya and the Shudra. 4 Varnas. So ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले मनुस्मृति में मनु ने इन चारों वर्णों को बहुत सारी उपजातियों में विभाजित कर दिया, जाति व्यवस्था में। तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति के बाद जो आज तक बहुत से भारतीय जो समूह हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉर सोशल एथिक्स वो है मनुस्मृति। आज भी जो है हमारी सामाजिक संहिता जो है मनुस्मृति का पालन कहीं ना कहीं कर रही है,
ऐसा आज भी माना जाता है बहुत से विद्वानों के द्वारा। तो इस मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कर्म पर आधारित थी, वैदिक काल में वो कर्म पे आधारित थी। धीरे से इसे जन्म पे आधारित किया गया। मनुस्मृति के बाद मनु ने किया, ऐसा माना जाता है। तो जन्म आधारित होने पे क्या हो गया, कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, तो जो चारों वर्ण थे वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे, क्षैतिज तल पे थे, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, एक साथ खड़े थे विद द सेम प्लेन सरफेस। ओके, पर जब ये सिस्टम चेंज हुआ और मनुस्मृति के बाद उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में अगर हम आए, उत्तर वैदिक काल में कर्म आधारित व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था में बदल गई। जन्म आधारित व्यवस्था में बदलने के साथ इसमें फाउंडेशन आ गया। पहले कोई भी अपनी जैसे अभी आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं, देयर इज नो फाउंडेशन, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर यू। पर हजारों साल तक के, लगभग 5000 साल तक के हमारे यहाँ ये व्यवस्था रही है कि कार्य भी जन्म आधारित होता था। जो आपके माता पिता का कार्य है, माता को तो इजाजत ही नहीं थी कार्य करने की, पिता का ही कार्य है, महिलाओं की स्थिति और दयनीय थी। तो जो हमारे पिता का कार्य होता था वही कार्य हम कर सकते थे, फाउंडेशन था। जिस कुल, जिस वंश, जिस जाति में हमारे पिता जन्मे हैं, उसकी सदस्यता हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती थी। अब आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी आपकी जाति जो है आपके माता पिता के द्वारा तय हो जाती है, खासकर आपके पिता के द्वारा ही तय होती है। आपके जाति प्रमाण पत्र भी आपके पिता के जाति के आधार पर बनते हैं, आपको पता होगा। तो टुडे देयर इज अ फ्रीडम इन ऑक्यूपेशन, बट देयर इज नॉट फ्रीडम इन द बर्थ। जन्म के आधार पे आज भी आपको बांटा जा रहा है, पर्टिकुलर किसी जाति में, पर्टिकुलर किसी धर्म में, बगैर आपकी इजाजत के, बगैर आपके विवेकपूर्ण निर्णय के। अब ये भी सोच के विषय है, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, हम उसको डीप में नहीं जाएंगे, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। बट इस कास्ट सिस्टम, सो हमने ये जाना कि कास्ट सिस्टम जो था, जाति व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था से उदित हुई है और वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बनाया गया और पेशों को जन्म के आधार पर ही निर्धारित कर दिया गया और पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव था जाति व्यवस्था में। अब नहीं है। आज़ादी के बाद 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद में ये स्वतंत्रता है कि आप जो भी व्यवसाय करना चाहें वो आप कर सकते हैं। परंतु उत्तर वैदिक काल से जो ये व्यवस्था शुरू हुई, तो ये व्यवस्था पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव के अभाव से संबंधित थी। मतलब यू आर नॉट फ्री टू डिसाइड योर ऑक्यूपेशन, द सोसाइटी विल डिसाइड योर ऑक्यूपेशन एंड इफ यू डू नॉट फॉलो दैट ऑक्यूपेशन, सोसाइटी डजंट हेल्प यू। So without the help of society, how can you survive economically or socially? That is not possible. तो इसलिए जो परंपरागत पेशे होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहे थे, व्यक्ति उन्हीं को फॉलो करता था, उसके सामने मजबूरी थी। ऐसा चला है बहुत वर्षों तक, लगभग 5000 वर्षों तक। सो एक चीज और थी जिसे डिस्कस करना बहुत जरूरी का सिस्टम, the idea of purity and impurity, the idea of purity and impurity। अगर ल्यूडियमो के पर्सपेक्टिव में देखें तो उन्होंने सुचिता और प्रदूषण की अवधारणा दी। सुचिता और प्रदूषण क्या है, और इसी संबंधित उनका एक सिद्धांत भी है, आपने पढ़ा होगा, सोशल कैपिलरी थ्योरी, सामाजिक केशिकात्व का सिद्धांत। तो जो फोर्थ वर्ण था शूद्र, इसके साथ मनुस्मृति के बाद कुछ विशेष प्रकार की नियोक्ताएं जुड़ी हुई। नियोक्ता, डिस्क्वालिफिकेशन बाय बर्थ, डिस्क्वालिफिकेशन बाय बर्थ मतलब आप डिस्क्वालिफाइड हो गए जन्म लेने के साथ। किसी प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन, किस प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन?
डिस्क्वालिफिकेशन अबाउट इम्प्योरिटी बाय बर्थ, इम्प्योरिटी बाय बर्थ। अब जो जन्म से ही बाय बर्थ ही जो इम्प्योर है, फिर उसके प्योर होने के सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं, ऐसा हो। और बहुत बड़ी आबादी को जो है, जो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आने वाली जातियाँ थी, बहुत प्रकार की सामाजिक यातनाएं, अत्याचार सहन करने पड़े। और आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जब नया संविधान बना तो उस संविधान में इन जातियों के साथ जो हजारों वर्षों से अत्याचार होते आए उससे उन्हें मुक्त करने का प्रयास किया गया। समानता का प्रावधान किया गया हमारे संवैधानिक व्यवस्था में। और सिर्फ समानता का एक प्रावधान नहीं किया गया, जो इतने वर्षों के से इन पर अत्याचार हो रहे हैं, इसकी वजह से जो पिछड़ गए हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, विभिन्न प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई, यू नो दैट, ताकि वो समकक्ष आ सके। जो नीचे गिर गया है उसको पास में लाके बैठाना है, तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि उसको नीचे से खींच के समान तल पे लाके बैठाया जा सके। 5000 वर्षों तक के जो अत्याचार हुआ उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वो समानता पे आ जाए, और जब समानता का लेवल हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आरक्षण की व्यवस्था हटा दी जाए। अब तो आय के आधार पर भी आरक्षण की बात हो रही, धीरे धीरे जो ऐसा लगता है कि जातिगत आरक्षण धीरे धीरे डिजर्व हो सकता है, और आय के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है कि जो जिस व्यक्ति की आय बहुत कम है उसको आरक्षण दिया जाए, ताकि वो अधिक आय वालों के साथ में कंपटीशन करके समाज में अपना एक मुकाम हासिल कर सके, कोई पोजीशन, कोई सोशल स्टेटस ऑक्यूर कर सके। वरना अगर उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो किस प्रकार से कंपटीशन कर पाएगा। एक व्यक्ति जिसके पिता की आय 200 रुपये प्रतिदिन है, और एक व्यक्ति जिसके पिता की आय 2000 रुपये प्रतिदिन है, और एक व्यक्ति जिसके पिता की आय 20,000 रुपये प्रतिदिन है, इन तीनों व्यक्तियों के बीच आप कैसे कह सकते हैं कि अगर वो किसी कंपटीशन में बैठेंगे उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज होंगी? देयर विल बी नॉट द सेम अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज उनके पास ज़्यादा होगी जिनके पास अधिक संसाधन है, जिनके पास कम संसाधन है उनके पास अवसर भी कम होंगे, उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के और आगे बढ़ने के, बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने के, बेहतर जीवन स्तर पाने के ऑप्शंस, अवसर अपने आप कम होंगे। इट इज कॉमन सेंस, यू नो दैट। ओके, सो इन ब्रीफ वी आर studying and discussing. Today we are not getting very much deep and very much involved in these topics. Later on in some other lectures we will discuss on it deeply. So the next point is importance of traditional rituals. भारत जैसे जो प्राचीन समाज जो होते हैं, जितने भी प्राचीन समाज, जैसे कि तुलनात्मक रूप से आप देखें कंपैरेटिवली अमेरिकन सोसाइटी इज अ यंगर सोसाइटी। 400 साल से पुराना उसका इतिहास था, 400 साल के पहले अस्तित्व में ही नहीं था। भारत हजारों साल से अस्तित्व में रहा है। तो जो सभ्यता, जो संस्कृति जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, वो ट्रेडिशनलिस्ट होगी, मॉडर्न सोसाइटी नहीं। और ऐसी सोसाइटी जिसके पास हजारों सालों का ट्रेडिशन है, वो अपने ट्रेडिशन से डिटैच्ड नहीं हो सकती है। They will be conservative for their traditions. So Indian society is a very conservative society for its traditions, for its rituals. और ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना करते हैं कि मॉडर्न वे में हम हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, बट हम ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ते। We feel social security and religious security also in following our traditions and our rituals. So the Indians are very much attached and continuously follow their thousands years ancient traditions and rituals. They feel psychological
safety, social safety, and happiness, benediction in following these traditions and rituals. Okay. Importance of religion. Next point. भारतीय समाज हमेशा से धर्म प्रधान समाज रहा है। समाज मेन नहीं रहा है, धर्म मेन रहा है। समझने का प्रयास करिए। भारतीय समाज के दृष्टिकोण में धर्म प्रमुख है, समाज प्रमुख नहीं है। एक व्यक्ति का स्वयं का जीवन और उसकी कंफर्ट्स और डिस्कम्फर्ट्स, उसकी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं। धर्म महत्वपूर्ण है, धार्मिक लक्ष्य महत्वपूर्ण है, सामाजिक लक्ष्य, व्यक्तिगत लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं रहे। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज जो है हमेशा से धर्म प्रधान समाज रहा है। मतलब धर्म के लिए समाज, ना कि समाज के लिए धर्म, दोनों में बहुत अंतर है। धर्म के लिए समाज, समाज समर्पित होगा धर्म के लिए, धर्म समर्पित नहीं होगा समाज के लिए। सो द मेन figure is religion. It is primary and the society itself is secondary. So society will do everything for religion. Society will do everything for religion because it feels itself secondary and the religious structure primary. Okay. And the last point is importance of social institutions like marriage and family. ये एक जो टॉपिक है, इन पे एक लेक्चर दिया जा सकता है। बहुत सारे ज़्यादा ब्रीफ में गहराई में डिस्कशन करने की आवश्यकता होती है। मैं इसको ब्रीफ में समझाने का आपको प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेन फोकस हमारा जो है इन स्टडी के बेस को समझने का है, जो सामाजिक शोधों के लिए प्रयोग हो रहा है काफ़ी समय से भारतीय समाज में। तो इसलिए ब्रीफ में हम समझेंगे। Importance of social institutions like marriage and family. अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं ये आप जानते हैं, मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया भी है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। द मैनेजमेंट ऑफ सोशल लॉज and social processes is called social institutions, which are working for the welfare of society. Okay, social institutions are working for the welfare of society. All the social institutions are dedicated towards society and its welfare and its social structure. तो जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, हमने जाना है, हमने सीखा है कि ये नियमों एवं कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है जो समाज के हित के लिए कार्य करती है, समाज के प्रति समर्पित होती है। और आप ये भी जानते हैं कि संस्थाओं की सदस्यता नहीं होती, आप उसकी सदस्यता नहीं होती, सदस्यता समिति की होती है क्योंकि समिति के जो जिन लोगों का पर्सनल बेनिफिट होता है वही लोग मिलकर के समिति या कमेटी को क्रिएट करते हैं, तो वहाँ सदस्यता होती है, संस्थाओं में सदस्यता नहीं होती। आज आप किसी यहाँ स्कॉलर हैं, कल कोई दूसरा स्कॉलर होगा, तो सदस्यता नहीं है आपकी, आप एक सीमित समय के लिए, मैं एक सीमित समय के लिए, हमेशा हम यहाँ नहीं रहेंगे किसी भी संस्था के साथ में। तो सदस्यता की अनिवार्यता नहीं है, सदस्यता का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है संस्थाओं के साथ में। वहाँ नियमों एवं कार्यप्रणालियों की आवश्यकता होती है जो कि समाज के हित में, सबसे बड़ी बात है, समाज के हित के लिए होनी चाहिए, फॉर द सोशल वेलफेयर। ओके, तो व्हाट इज मैरिज एंड फैमिली? यू नो, मैरिज जो है इसके ऊपर जो है हमने डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा कि विवाह नामक जो संस्था है, दो विपरीत जो जेंडर के लोग हैं उन लोगों को एक साथ मिलकर के सामाजिक जीवन जीने और संतान उत्पत्ति करने का एक सामाजिक आयोजन है ताकि उनके साहचर्य को सामाजिक मान्यता दी जाए और उनके द्वारा उत्पन्न हुई संतान है उसे वैध संतान माना जाए समाज के।
ये एक व्यवस्था है मैरिज की, और हजारों सालों से ये व्यवस्था चलती आ रही है। और यू नो दैट देयर आर टू simultaneously approximately 200 countries, 300 religions in the world. In all the countries, in all the religions, there is a system of marriage and family. So, universality is about marriage and family. ये जो दोनों सामाजिक संस्थाएं हैं वो सभी प्रकार के समाजों में पाई जाती है, सभी प्रकार की संस्कृतियों में, सभी प्रकार के धर्मों में पाई जाती है हमेशा से, चाहे वो संस्कृतियाँ एक दूसरे को जानती रही हो या ना रही। अभी तो ग्लोबल सोसाइटी है, हम बहुत अच्छे से परिचित हैं वैश्विक रूप से एक दूसरे से, और एक दूसरे की संस्कृतियों और एक दूसरे के धर्मों से, परंतु जब हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, तब भी अलग अलग प्रकार के समाजों में, अलग अलग प्रकार के देशों में ये कॉन्सेप्ट था, ये सोशल इंस्टीट्यूशन स्थापित थे, परिवार और विवाह नामक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं हमेशा से भारतीय समाज के संदर्भ में। आदमी अपना पूरा जीवन जो है वो विवाह और परिवार में ही गुजार देता है, एक भारतीय व्यक्ति, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसके लिए यही गृहस्थ जीवन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में भारतीय सामाजिक व्यक्ति के लिए। फॉर सोशल पर्सन ऑफ इंडिया इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट द हाउसहोल्ड इमेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी। तो प्राथमिक दायित्व आज के समय में प्रत्येक भारतीय सामाजिक प्राणी का यही होता है कि वो अपनी सामाजिक दायित्वों का, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करें। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, और विवाह को भी सब भारतीय धर्मों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। आप किसी भी धार्मिक कार्य को अकेले नहीं कर सकते, आप अपने जो है जीवन साथी के साथ ही कर सकते हैं। तो धार्मिक मान्यता बहुत अधिक है, और धार्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह एक साधन के रूप में देखा गया, एक ट्रेडिशन के रूप में देखा गया, और वैवाहिक बंधन को बहुत पवित्र माना गया। इसलिए हमारे समाज में जो है लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को बहुत अलग तरह से देखा जाता है। मान्यता, सामाजिक मान्यता इसे मिलेगी, इसके लिए शायद 100-200 वर्ष और लग जाए। तलाक को बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता है, एक विवाहिता को, मोनोगेमी को बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाती है, बिकॉज पवित्र बंधन माना जाता है विवाह। परिवार को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का ये समझाया जाता है सामाजिक रूप से कि आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इज योर फैमिली। If you are not fulfilling your social responsibilities, that is okay, but you must fulfill your familial responsibility towards your family members. You have to first fulfill. And many social beings in our society are sacrificing their life for their families, and it is a higher value, higher social value in our society. So आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज जो हमारा डिस्कशन हुआ आपको समझ आया, आगे करेंगे। धन्यवाद।